Hello, my dear students. This time I am going to discuss with you through my video the basic concepts of physiology of respiratory system. If you understand it clearly, then it will become very easy for you to understand the physiology of the respiratory system. So let us start. This is the relation between the body tissues and heart and lungs with systemic and pulmonary circulation. So let us throw some light. This is the right heart, this is the left heart, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Right heart receives the deoxygenated blood from the body tissues. These are the body tissues of lower half of the body, and these are the body tissues of upper half of the body. The deoxygenated blood is coming through the veins, systemic veins, from the upper and lower part of the body, and ultimately they come in through the superior vena cava, inferior vena cava, and the blood enters to the right atrium. From the right atrium to the right ventricle, and from the right ventricle, this deoxygenated blood enters into the pulmonary aorta, which is in continuation with the two pulmonary arteries, and ultimately this deoxygenated blood goes to the lungs, and there the formation of pulmonary capillaries, blood passing through the pulmonary capillaries. When the blood passing through the pulmonary capillaries, the oxygen enters from the lung alveoli and into the capillaries, and carbon dioxide is enter into the alveoli and passed out, expired out. Oxygen enters and the blood becomes oxygenated. Now this oxygenated blood through the two pulmonary veins from the right lungs and two pulmonary veins from the left lung. So four pulmonary veins, through four pulmonary veins, this oxygenated blood enters into the left atrium, then goes to the left ventricle, then arch of the aorta, then ascending aorta, descending aorta, and it goes to the again body tissues, converting the arterioles and meta-arterioles, then capillaries, tissue capillaries. Then through the tissue capillaries, oxygen enter into the body tissues. There is utilization of the oxygen with the glucose, and carbon dioxide is formed, energy is formed, water is formed. This carbon dioxide enters into the blood and blood becomes deoxygenated, and cycle is repeated. So the whole cycle, one cycle takes 0.8 सेकंड, दैट इज कार्डिक साइकिल. एक 0.8 सेकंड के अंदर ये सब कुछ कवर हो जाता है कंप्लीट. तो दिस इज सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो ये दो सर्कुलेशन हो गए, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. दिस इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन और लेसर सर्कुलेशन. एंड द सर्कुलेशन इज फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज and from body tissues to the heart. This is systemic circulation or greater circulation. तो ये सर्कुलेशन हो गया और रिलेशन हो गया लंग्स, बॉडी टिश्यूज और हार्ट में. नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. दिस इज स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन. ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है. डिऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है ये सुपियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आउटा, यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व से. पल्मोनरी आउटा अल्टीमेटली डिवाइड्स टू पल्मोनरी आर्टरीज. लंग्स में पहुंचा, वहां पे एल्वुलाई है, ऑक्सीजन मिल गई ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड then through four pulmonary veins, two from the right lungs, two from the left lung, enters into the left atrium. एंड दिस लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये बाइकस्पिड वाले माइटर वाल्व यहाँ पर है. लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आउटा में जाते हैं, यहाँ पर आउटिक वाल्व्स हैं. एंड सिस्टमिक आउटा से फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आउटा अल्टीमेटली रीचेस टू द upper parts of the body and lower parts of the body. In the body tissues, again there are systemic capillaries and oxygen utilization is there. Oxygen utilized by the tissues, carbon dioxide is produced, and then blood again become deoxygenated and cycle is repeated. तो ये अगेन हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, लेसर सर्कुलेशन है.
हार्ट से बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज से फिर अगर हार्ट में, ये ग्रेटर सर्कुलेशन है या सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन शो कर रहा है, राइट वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन शो कर रहा है। इसको अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसी को डिस्कस करना फिजियोलॉजी। तो सेम चीज है एक दूसरी फॉर्मेट में। ये लंग एल्यूलाई, ये इंस्पायर्ड एयर है या एटमॉस्फेरिक एयर है। यहां से एयर एंटर कर रही है along with the ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ और फिर लंग एलवाई में जब पहुंचते हैं ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जा रही है एक्सपायर्ड होके, एक्सपायर्ड एयर ये भी एटमॉस्फेयर में एक में जा रही है। यहाँ पर जो एल्वुलाई पहुंचती है एल्वुलर एयर, लंग एल्वुलाई के पास से पल्मोनरी कैपिलरीज पास हो रही है और ये राइट हार्ट से आ रही हैं। राइट हार्ट में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और फिर वही सेम पल्मोनरी ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ ब्लड पास हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन गोes टू द लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन सिस्टमिक aorta, देन सिस्टमिक आर्टरीज बनी, आर्टरियोल्स बने, मेटाआर्टरियोल्स बने और कैपिलरीज बनी है, टिश्यू कैपिलरीज। ऑक्सीजन यहाँ पर टिश्यूज के अंदर आ गई, यूटिलाइज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और कार्बन डाइऑक्साइड से ये फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया थ्रू सिस्टम वेन्स, अल्टीमेटली सुपियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और राइट हार्ट में एंटर कर गई। तो ये पोर्शन अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, ये पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है और यहाँ पर इंस्पिरेशन और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हो रहा है। तो ये बॉडी टिश्यूज हो गए, लंग्स का पार्ट हो गया यहाँ पर, ये राइट हार्ट, ये लेफ्ट हार्ट। इसमें एक चीज और बतानी है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पहुंच रहा है और ऑक्सीजनेशन हो रहा है, इसमें करीब 2% ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी कैपिलरीज को बाईपास करता हुआ यहाँ पहुंच जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाता है। तो ये जो कि ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई कर रहे हैं ब्रोंकाई वगैरह को, उसमें ब्रोंकियल वेन्स और थिबेशियन वेन्स के जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डायरेक्टली ये इसमें ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिल जा रहा है एंड दिस इज नॉट द फिजियोलॉजिकल शंट। इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है होता है एल्वुलर में ऑक्सीजन का, यहाँ पर 100 मिलीमीटर पर मरकरी है और यहाँ प्रेशर 100 से कम हो जाता है आर्टरी ब्लड में। इस फिजियोलॉजिकल शंट की वजह से 95 मिलीमीटर मरकरी ही रह जाता है। तो फिजियोलॉजिकल शंट भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है समटाइम्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक और चीज, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस लेवल्स। हमारे पास एक लेवल एटमॉस्फेरिक इंस्पायर्ड एयर का है, सेकंड एक्सपायर्ड एयर का है, देन एल्वुलर एयर का है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट हार्ट, फिर बॉडी टिश्यूज का है, फिर राइट हार्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे डिफरेंट वेन से ब्लड निकलता हुआ अल्टीमेटली मिक्स होता है सुपियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में जाके मिलके और फिर राइट एट्रियम हो जाता है। तो वहां पे जो वेनस ब्लड है वो मिक्स्ड वेनस ब्लड कहलाता है। तो ये इसको हम मिक्स्ड वेनस ब्लड कहते हैं इस जगह पर। तो बाकी जगहों पे प्रेशर ये कंसंट्रेशन अलग होगी क्योंकि बॉडी टिश्यूज हैं, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज से यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जब ये मिक्स हो जाता है तो फिर इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है। तो हम यहाँ पर मिक्स वेनस ब्लड की बात करेंगे। तो अब हम लेवल देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वेरियस लेवल क्या है। एटमॉस्फेरिक एयर में या इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन का टेंशन या पार्शियल प्रेशर PiO2 158 मिलीमीटर मरकरी है। आई कैपिटल आई से शो हो रहा है इंस्पायर्ड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेंशन है या पार्शियल प्रेशर 0.3 मिलीमीटर मरकरी। देन ये इंस्पायर्ड एयर एंटर कर रही एल्वुलर एयर में और एल्वुलर एयर के अंदर ऑक्सीजन टेंशन 100 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है, समटाइम्स 104 तक, तो 100 मिलीमीटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन बढ़ता है 40 मिलीमीटर मरकरी। ये आपको याद रखने हैं, बार बार पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। देन यहाँ पर ये 100 है और हमने बताया फिजियोलॉजिकल शंट की वजह से यहाँ पर
95 मिनट मरकरी रह जाता है। ये आर्टियल स्मॉल ए, कैपिटल ए एल्वुलर एयर, स्मॉल ए आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड में या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 मिनट मरकरी ऑक्सीजन का प्रेशर है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी 40 था, यहाँ भी 40 है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेंशन है वो 40 मीटर मरकरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर और लेफ्ट हार्ट के अंदर। देन बॉडी टिश्यूज में क्या होता है, बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन की टेंशन लेस देन 40 मीटर मरकरी है, क्योंकि ये लेस देन 40 है और यहाँ पे 95 है, तो इस डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन एंटर कर जाती है बॉडी टिश्यूज के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन 46 मीटर मरकरी है और यहाँ पर 40 मीटर मरकरी है। 40 मीटर मरकरी से ब्लड फ्लो कर रहा है, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द ब्लड। ठीक है, अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। और यहाँ पर मिक्स वेनस ब्लड में, मिक्स वेनस ब्लड के अंदर अगेन 40 मिनट मरकरी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 46 मिनट मरकरी हो गया। ठीक है, यहाँ 40 था कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 46 हो गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है। ऑक्सीजन 95 था यहाँ पर, ऑक्सीजन इधर चली गई और यहाँ पर 40 रह गया। अभी 40 मीटर मरकरी से ऑक्सीजन प्रेशर से यहाँ पे बह रही है, और यहाँ पर आप देखिए 100 है, तो 100 और 40 का डिफरेंस आ गया 60 मीटर मरकरी। तो 60 मीटर मरकरी डिफरेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाती है एल्वियोलाई से कैपिलरीज में। यहाँ 46 है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर 40 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिविटी भी काफी ज्यादा है, उसकी वजह से ये दोनों फैक्टर से काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इधर चली जाती है। तो ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन 116 मिनट मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड 32 मिनट मरकरी प्रेशर हो जाता है, पार्शियल प्रेशर। तो ये तीनों लेवल्स पे हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर सारे लेवल्स पर, एटमॉस्फेरिक एयर, एक्सपायर्ड एयर, एल्वियुलर एयर, ऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यूज एंड मिक्स्ड वेनस ब्लड, पार्शियल प्रेशर। एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी, दैट इज कंसंट्रेशन, यानी 100 ml ऑफ एयर या 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी ml है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ml है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वेरियस लेवल, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं इंस्पायर्ड एयर से। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द इंस्पायर्ड एयर इज 21%, यानी 100 ml अगर आप एयर लेंगे तो 21 ml उसमें ऑक्सीजन होगी, एंड 0.03 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो 0.03% है। बाकी नाइट्रोजन मैक्सिमम है, बाकी और कुछ इनर्ट गैसेस वगैरह और चीजें हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है 21% होती है। जब ये ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर में पहुंचती है तो एल्वियोलर एयर के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 21 से कम होके 14.5% हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% बढ़कर 4.5% हो जाती है एल्वियोलर एयर के अंदर। उसके बाद में ऑक्सीजन यहाँ चली गई और आर्टरी ब्लड में मिली, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे 19% है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 48% है। तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में। तो 19 ml यहाँ पर ब्लड हो गया। अगर 100 ml ब्लड हम लें तो 19 ml इसमें ऑक्सीजन होगी, 100 ml ब्लड में 48 ml कार्बन डाइऑक्साइड। ये आर्टेरियल ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर है कंसंट्रेशन। जब ये बॉडी टिश्यूज में पहुंचते हैं तो बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल जाती है, और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट रहता है, यहाँ पर वेनस ब्लड में तो डिफरेंट है, डिफरेंट टिश्यूज में, मिक्स्ड वेनस ब्लड के अंदर ये कंडीशन आ जाती है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 14% और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 52% हो जाती है। यानी आर्टेरियल ब्लड में 19% है और वेनस मिक्स्ड वेनस ब्लड में 14% है। यानी 100 ml एयर अगर 100 ml ब्लड अगर लें तो 5 ml ऑक्सीजन यहाँ चली गई। 100 ml ब्लड अगर यहाँ से पास हुआ है तो 5 ml ऑक्सीजन यहाँ चली गई, तो यहाँ 19 ml था, यहाँ 14 ml रह गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये 48%, ये 52% है, तो 100 ml ब्लड यहाँ से अगर पास हुआ है तो डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल गई है। यानी 100 ml अगर ब्लड पास हो रहा है तो 5 ml ऑक्सीजन और 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अपॉन
ऑक्सीजन यूटिलाइज इजकल टू रेस्पिरेटरी कोशेंट, यानी 4/5, 0.8 इज द रेस्पिरेटरी कोशेंट। और यहाँ पर अल्टीमेटली जाके फिर ये एक्सपायर्ड एयर में देखिए 16%, अगेन 21% ऑक्सीजन है, 16% यहाँ पर है एक्सपायर्ड एयर में। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। ब्लड में आप कंसंट्रेशन एयर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी 5 ही है तकरीबन। तो 5 ml ऑक्सीजन जो है यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है ये बॉडी टिश्यू में 100 ml एयर में से या 100 ml ब्लड में से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, पार्शियल प्रेशर, यहाँ हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, ये पार्शियल प्रेशर है इंस्पायर्ड एयर में, ये एक्सपायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर, एल्वियोलर में ब्लैक कलर के, देन आर्टीरियल ब्लड के अंदर, देन टिश्यू के अंदर, देन मिक्स वेनस ब्लड के अंदर, ये ब्लैक। और ये पर्पल कलर में कंसंट्रेशन है इंस्पायर्ड एयर में कंसंट्रेशन, एक्सपायर्ड एयर में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, एल्वियोलर एयर में, देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये मिक्स्ड वेनस ब्लड में। तो ये चीज अगर आपको हमेशा पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जगह जगह आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इतना आपको जरूर मालूम होना चाहिए। और इसी के बेस पर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैक्सिमम पार्ट डिस्कस हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है फंक्शन एनाटमी, फंक्शंस एंड फंक्शन टेस्ट। तो फंक्शन एनाटमी में लंग्स डिस्कस करेंगे, प्लूरा डिस्कस करेंगे, विजरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, इसकी एनाटमी। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नोज से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल से अप टू वोकल कार्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर उसके बाद में ट्रेकिया है, ट्रेकिया बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई है, और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्योल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्योल तक कंडक्टिंग जोन होता है। टर्मिनल ब्रोंक्योल के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल के बाद में एलुलाई वगैरह, वो फिर रेस्पिरेटरी जोन होता है, और उसको एक रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर एलुलाई तक फिर जाके रेस्पिरेटरी जोन ये यहाँ पर हो गया। फिर एलुलाई के अंदर ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये देखिए एलुलाई है, ये एलुलर मेम्ब्रेन हो गई, और ये कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन कहते हैं, या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर फंक्शन एनाटमी आपको डिस्कस करनी है, जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। देन फंक्शंस ऑफ लंग्स, फंक्शन ऑफ लंग्स रेस्पिरेटरी भी है, यानी इंस्पिरेशन हो रहा है एंड एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन भी हैं, एंडोक्राइनल फंक्शंस हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाले फंक्शन है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, डिफेंसिव फंक्शन भी है, सीलिया, एल्वुलर, मैक्रोफेजेस वगैरह। तो बहुत से नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी हैं इसके अंदर। देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग वॉल्यूम्स, लंग कैपेसिटीज, ये स्टेटिक हैं, 4 लंग वॉल्यूम्स है, 4 लंग कैपेसिटीज हैं, स्टेटिक लंग। उसके बाद में फिर डायनेमिक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, जैसे कि टाइम वाइटल कैपेसिटी है, मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम है। आफ्टर दैट पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के ब्लड यहाँ से रेस्पिरेशन से वेंस के थ्रू हार्ट में, हार्ट से फिर वापस आ रहे हैं पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, और यहाँ पर ब्रोंकियल वेंस, ब्रोंकियल आर्टरीज भी हैं। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन आप डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आफ्टर दैट मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ पर मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, कैसे इंस्पिरेशन होता है, कैसे एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे सब कुछ रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, चीफ रेस्पिरेटरी मसल, जैसे इंस्पिरेटरी में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हैं, एसेसरी में स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड वगैरह वगैरह है, एलिनेजाई हैं, और एक्सपिरेटरी और एक्सपिरेटरी। और फोर्सफुल अगर हम करें तो एक्सपिरेटरी में इंटरनल इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल्स है, वो डिस्कस करेंगे। देन प्रेशर्स, इंट्राप्लूरल, जो प्लूरल कैविटी है, विजुअल प्लूरल और पैराइटल प्लूरल के बीच में प्लूरल कैविटी है, वहां पे इंट्राप्लूरल प्रेशर है। एल्वुलाई के अंदर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है, और दोनों का डिफरेंस जो बीच में होता है वो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है। ये प्रेशर डिस्कस करेंगे। देन मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, कैसे इंस्पिरेशन होता है और कैसे एक्सप्रेशन होता है, उसमें प्रेशर का क्या रोल है, मसल्स का क्या रोल है, मैकेनिज्म। देन कंप्लायंस इज द स्ट्रेचेबिलिटी, कितना स्ट्रेचेबल है। और उसके बाद में यहाँ पे मेम्ब्रेन पर ही सर्फेक्टेंट्स है, यहाँ पर 2 तरह के सेल हैं, टाइप 1 एल्वेयर सेल, टाइप 2 एल्वेयर सेल। टाइप 2 सर्फेक्टेंट्स रिलीज होते हैं। सर्फेक्टेंट जो है लंग को कोलेप्स नहीं होने देता,
क्योंकि सफोकेशन को कम करता है। ये डिस्कस होगा। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट, अगर ये बच्चों में कम हो जाए तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। देन ये इतने पोर्शन में तो ये सब डिस्कस हो गया। ये अब नेक्स्ट स्टेप आइए, ये इस लेवल पर एलुलाई से यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज में कैसे डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का और कैसे डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एट एलुलर लेवल। तो ये डिस्कस करेंगे, ये अलग से एक टॉपिक है। तो यहाँ पे वही पार्शियल प्रेशर्स का रोल है, यहाँ पे कितना प्रेशर, यहाँ कितना प्रेशर है, रेस्पिरेटरी एलुलर कैपिलर मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन की एनाटॉमी, फिर डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटी कैसे क्या होती है, ये डिस्कस होगा। आफ्टर दैट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन कैसे यहाँ पहुंच रही है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंच रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि 97% हीमोग्लोबिन से अटैच होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है, 3% फिजिकल सॉल्यूशन में जा रही है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यहीं पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, यहीं पर आपको बोर्स इफेक्ट वगैरह डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक जा रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, ये मेनली बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की शक्ल में मैक्सिमम जा रही है। हीमोग्लोबिन से भी अटैच होकर जा रही है, फिजिकल सॉल्यूशन से भी जा रही है, कार्बोमेनो प्रोटीन से भी कंबाइन होकर जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यहाँ पर हेल्डन इफेक्ट का भी रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व का रोल है। तो यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। ये पोर्शन था, फिर ये पोर्शन था, फिर ये पोर्शन था। देन डिफ्यूजन इस लेवल पर हुआ एट टिश्यू लेवल। ऑक्सीजन ब्लड से बॉडी टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से ब्लड में। टिश्यू लेवल, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये सारा पूरा जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ रहा है, ये सारे फेजेस। बट दिस वन पार्ट इज नोन एज द इंटरनल रेस्पिरेशन, जो टिश्यू लेवल पे हो रहा है। आफ्टर दैट कंट्रोल रेगुलेशन रेस्पिरेशन। रेगुलेशन रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, वो मेडुलरी न्यूरल रेगुलेशन है। न्यूरल रेगुलेशन में मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, एपनिस्टिक सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर वगैरह, और साथ में कुछ रिफ्लेक्सेस बाहर की हैं, पेरिफेरल हीरिंग बेरियर रिफ्लेक्स है, जे रिसेप्टर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन यहाँ पर जो आउटा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, आउटा में आर्च ऑफ आउटा में ही कैरोटिड बॉडीज और आउटिक कैरोटिड बॉडीज और कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड बॉडीज हैं, आर्च वाटर में आउटिक बॉडीज हैं। ये डिटेक्ट करती हैं कि ऑक्सीजन कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई या पीएच कम हो गया। तब यहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं थ्रू 9th and 10th नर्व मेडुला में पहुंचती है, मेडुला से फिर वापस आती है, मेडुला से फिर हार्ट को भी कंट्रोल करती हैं, ब्लड वेसल्स को भी और रेस्पिरेटरी मसल्स को भी। तो रेस्पिरेशन पे भी इफेक्ट है और ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट है, हार्ट रेट वगैरह पे भी उसका इफेक्ट होता है। ये केमिकल रेगुलेशन हो गए, कंट्रोल। आफ्टर दैट अप्लाई एस्पेक्ट हाइपोक्सिया, यानी कि टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो हाइपोक्सिया, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कमी है तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। एल्वियोलर, यहाँ पर अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं तब भी ऑक्सीजन यहाँ नहीं पहुंच पाएगी ब्लड में, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो है ब्लड यहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, आरबीसी कम हो गई या हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो ये एनीमिक हाइपोक्सिया कहलाता है। फिर अगर ब्लड फ्लो स्लगिश हो गया, तो यहाँ तक ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, तो ये स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पहुंच जाए और टिश्यूज को यूटिलाइज ना कर पाए कायदे से, तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो गया। तो ये हाइपोक्सिया यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाइपरकेप्निया, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए। एस्फिक्सिया, ऑक्सीजन भी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है। एपनिया, रेस्पिरेटरी रेट थोड़ी देर के लिए रुक गया। डिस्निया, डिस्ट्रेस ब्रीदिंग हो रही है। साइनोसिस, जहां पर डीऑक्सीनेटेड, जैसे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml है एक नॉर्मल, तो उसमें से 5 ग्राम से ज्यादा पर 100 ml हीमोग्लोबिन डीऑक्सीनेटेड हो रहा है, तो कुछ पोर्शन बॉडी का ब्लू हो जाता है, साइनोसिस कहलाती है। देन पीरियडिक ब्रीदिंग, जैसे कि शैन-स्टोक्स ब्रीदिंग है या बाइट्स ब्रीदिंग है, जिसमें इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का पैटर्न बदल जाता है। ऑक्सीजन अगर हम किसी को दे रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी अगर ज्यादा दे दें तो ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो सकती है। क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, अप्लाइड एस्पेक्ट। और अगर पर्सन बहुत ज्यादा डीप सी में चला जाए
तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, और तेजी के साथ अगर बाहर आता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिस्पेरिस और हाइपरपेरिस भी डिस्कस करेंगे। लास्टली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स वगैरह हैं। तो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस हो सकती हैं, ब्रोंकेक्टेसिस हो सकती है, डायलिटेशन, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर। देखिए कुछ एम्फाइसीमा में भी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैक्ट में। देन डिसऑर्डर ऑफ द पिलूरा, पिलूरा जो लंग्स के चारों तरफ है, पिलुराइटिस हो सकता है। प्लूरल कैविटी के अंदर अगर फ्लूड आ गया तो हाइड्रोथोरेक्स, अगर एक्सुडेटिव फ्लूड आ गया तो ट्रांसुडेटिव फ्लूड है तो हाइड्रोथोरेक्स, एक्सुडेटिव फ्लूड है यानी इन्फ्लेमेटरी तो प्लूरल फ्यूजन हो गया, ब्लड आ गया हीमोथोरेक्स है, और एयर भर गए न्यूमोथोरेक्स है, लिम्फ आ गया तो काइलोथोरेक्स, लाइक दैट। देन डिसऑर्डर तो लंग पेरेन्काइमा, लंग पेरेन्काइमा के डिसऑर्डर्स यानी जैसे कि एम्फाइसीमा में एल्वेई के सबसेप्टा टूट जाते हैं, और निमोनिया, निमोनिया में लंग कंसोलिडेशन भी हो सकता है। लंग कोलेप्स यानी एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं, कैविटीज बन सकती हैं, कैंसर बन सकता है। फिर डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये इस जगह का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यहाँ पर डिसऑर्डर हो सकते हैं, या जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कुछ फ्लूइड या कैपिलरी से निकल के इसमें चला जाता है एल्वेई में, तो उसे कहते हैं पल्मोनरी इडीमा। ये इडीमा हो गया और उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। साथ ही ये जो सर्फेक्टेंट्स है, अगर सर्फेक्टेंट्स या मेम्ब्रेन पे कम हो गए तो पैदाइशी कम हो गए तो कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एडल्ट कंडीशन में कम हो गए तो एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हमने एक नट शेल आपको बताया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हो गया, इसको थोड़ा सा याद रखिए। अगर आप इसको याद रखेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। मैक्सिमम जितने भी जो टॉपिक्स हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हम इसी डायग्राम, एक बहुत छोटी सी फिगर है, एक सिंपल फिगर है, इसी फिगर को बेस्ड होके हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी और डिसऑर्डर वगैरह डिस्कस करेंगे। तो स्टॉप करते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग फीडबैक की ज़रूरत है। खुश रहिए और हंसते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।